Morning, children. Today, first we'll finish the prayer. After that, we will complete the chapter of A Surprise for Grandma. Okay? Let's first do the prayer. तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। यहाँ तक हमने किया है। अभी अगली दो लाइंस करेंगे। जो खिल सके ना वो फूल हम हैं, जो खिल सके ना फूल वो हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं, तुम्हारे चरणों की धूल हम हैं। दया की दृष्टि सदा रखना, दया की दृष्टि सदा रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। सो इट विल बी लाइक दिस। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो साथी, तुम ही सहारे, कोई न अपना सिवा तुम्हारे, तुम ही हो नैया, तुम ही खेवैया, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। जो खिल सके ना वो फूल हम है, तुम्हारे चरणों की धूल हम है, दया की दृष्टि सदा रखना, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। So this is the prayer. You always sing it, record it and send it to me. Now I'm going to just revise this chapter once again for reading. A Surprise for Grandma. Sunday is a holiday. Sohan and Sweetie are going to visit Grandma and Grandpa. Hello Grandma. Hello Grandpa. Grandma has been busy today. She has cleaned all the rooms. She has wiped all the windows. Are you tired, Grandma? Let's give Grandma a rest today. Just sit and have a rest. Come on, Sohan. Come on, Sweetie. Grandpa, Sohan and Sweetie work in the kitchen. They are busy. Come to the kitchen, Grandma. Come and see. Oh, soup, sandwiches and salad. What a treat. Grandma, do you like banana delight? Oh, I love it. And now there's a surprise for you. Grandma, open this parcel. Oh, a mobile phone. What a surprise. But, Grandma, no buts now. I know your problem. You don't know how to use this. But don't worry, we will all help you. So you all will read this chapter one more time. Take a video and send. Now you all have learned these words. ये words हमने सीख लिए. Now we'll come to question 3. Answer the following questions. अभी इसके आंसर्स आप रेड एंड ब्लू लाइन बुक में लिखेंगे. किधर लिखेंगे? रेड एंड ब्लू लाइन बुक में. आपको क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप आंसर लिखेंगे. सो यू विल राइट 3A in the red and blue line book and write the answer. So what is the first question? Who are going to visit grandma and grandpa? तो कौन विजिट करने जा रहा है ग्रैंडमा और ग्रैंडपा को? सोहन एंड स्वीटी. सो आप कैसे लिखेंगे उसको? सो फर्स्ट वील राइट टुडेज डेट. Okay, then in your book you will write 3A. Okay, so who are going to visit grandma and grandpa? You will write Sohan and Sweetie
are going to visit grandma and grandpa. फुल सेंटेंस आपको लिखना है ये, ओके, एंड देन आफ्टर द सेंटेंस इज ओवर यू विल पुट अ फुल स्टॉप, ओके. यहाँ पे एस सोहन का कैपिटल आएगा और स्वीटी का एस कैपिटल आएगा, बाकी सब स्मॉल लेटर्स है, ओके. नाउ व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सो यू विल राइट बी. हु हैज बीन बिजी टुडे? सो हु हैज बीन बिजी टुडे? Yes, everybody has been busy today, but first grandma has been busy, so we will write grandma has been busy today, okay. So this is second question answer. Then you will go to the third one, that is the C part. Where do grandpa, Sohan and Sweetie work? So grandpa, Sohan and Sweetie work in the kitchen, okay. That's the third answer. The fourth, what is the surprise for grandma? So what is the surprise for grandma? The mobile phone. So a mobile phone is the surprise for grandma, okay. So this is what you need to write for this. You will write this in the red and blue line book, take a picture and send it to me. After this we come to the fourth question. And what is the fourth question in this? Who said the following? Are you tired, grandma? ये किसने बोला है? So that you will answer this. All questions you are going to answer. Come on Sohan, come on Sweetie. ये किसने बोला? आप क्वेश्चन, अगर आप पूरा चैप्टर ठीक से पढ़े हो आपको मालूम पड़ेगा ये किसने बोला है ये सब. Oh, मोबाइल फोन. But don't worry, we will all help you. Okay, so all this इधर ही यही ब्लैंक में आपको लिखना है. आर यू टायर्ड ग्रैंडमा कौन है? सोहन ने बोला, स्वीटी ने बोला या ग्रैंडपा ने बोला. सो यू विल राइट इट आउट हियर ओनली. राइट योर नेम हियर एंड टेक अ पिक्चर एंड सेंड. आफ्टर दिस, हाउ कैन वी कीप द फॉलोइंग क्लीन? बॉडी को कैसे क्लीन कर सकते हो आप? सो यू विल अप्लाई सोप. व्हाट विल यू अप्लाई? सोप. तो वो जो फर्स्ट बॉक्स है उसमें आप लिखेंगे सोप, SOAP, सोप. और कैसे क्लीन कर सकते हैं बॉडी को? वाटर, पानी से भी कर सकते हैं. सो वाटर, ओके. और कैसे कर सकते हैं? दैट यू नीड टू थिंक और आप बताएंगे, ओके. सो ये आपको सब भरना है. हाउ कैन यू कीप द फॉलोइंग क्लीन? सो बॉडी को क्लीन करेंगे आप, सोप, वाटर, और क्या डाल सकते हैं आप? बॉडी का अगर हेयर क्लीन करना है तो यू कैन यूज शैम्पू. और अगर आपको क्या हेयर में कंडीशनर भी यूज कर सकते हैं. सो यू कैन राइट ऑल दैट, शैम्पू, कंडीशनर. क्लोथ्स को कैसे क्लीन करेंगे? विद द डिटर्जेंट पाउडर और आयनिंग, ड्राइंग आउटसाइड. तो ये सब आपको यहाँ पे क्लोथ्स में लिखना है. होम को कैसे क्लीन करेंगे? बाय डूइंग डस्टिंग, मॉपिंग. सो ऑल दैट यू विल राइट हियर. स्कूल को कैसे क्लीन करेंगे? बाय पुटिंग ऑल द लिटर इन द डस्टबिन. मतलब जो भी कचरा हम करते हैं स्कूल में
जैसे हम पेपर्स यूज करते हैं, सो वी विल पुट दैट पेपर इन द डस्टबिन. डू वी पुट इट ऑन द फ्लोर? नो. सो यू विल do that. Then you can write by cleaning the desk, by keeping all the things tidy, by not dropping water on the floor. अभी ये सब जो भी मैं बोल रही हूँ, अगर इस बॉक्स में फिट नहीं हुआ तो आप अपने रेड एंड ब्लू लाइन बुक में लिख के फोटो खींच के भेज सकते हैं. ओके, सो दैट इज व्हाट यू नीड टू डू फॉर दिस. सो देयर इज लॉट ऑफ इंग्लिश वर्क टू बी डन. Listen to it carefully and do it and send it to me. Okay, don't forget to write your names. There are still many kids who are not writing names. I need your names. Name लिखो और answers लिखो. Take a picture, take a video and send it to me. That's what you have to do for English. Now we will do this worksheet. Okay, worksheet पे नीचे पेज नंबर लिखा है 26. क्या लिखा है? 26. Okay, इसमें क्या करना है आपको? Circle the correct letter sound in which the picture begins. ये कौन सा पिक्चर है? एस्ट्रोनॉट. एस्ट्रोनॉट कौन से अल्फाबेट से शुरू होता है? A. So you will circle A. Similarly आप बाकी पिक्चर्स करेंगे. What is this? Bottle, cake, igloo, egg, dice, gate, flag, horse, and what is this? And this is jail. So you will circle J out here. So this all you will circle. Take a picture, write your name, take a picture and then send it to me. After that, turn your sheet. Turn your sheet. Now what you all are going to do is, you all are going to draw a Christmas tree. What will you all draw? A Christmas tree. I will draw one Christmas tree on this पेपर एंड शो इट टू यू. ये प्रैक्टिस के लिए है. ओके, जब क्रिसमस के पहले हमको ये आना चाहिए, इसके लिए मैं प्रैक्टिस दे रही हूँ. ये देखिए आप कैसे ड्रॉ करना है. ओके, so this is how you are going to draw the Christmas tree. Okay, and the star on that. Okay, then you can draw your ornaments. You can draw with a pencil or whatever. And then you have to color this Christmas tree. So you can draw your ornaments out here. You can draw some another ornaments like a box of gift. Then you can draw candy sticks. Okay, and when you are drawing this bottom, you will color this with brown color. Okay, like this. And you will color the tree with green color. अभी इसमें आपको कैसे करना है? You will give shading. तो आप बाहर का जो है लाइन वो डार्क ग्रीन से करिए. ओके, ऐसे डार्क ग्रीन से आप पूरा बाहर लाइन करेंगे. थिक लाइन करना है. आपको एक पार्ट दिखा रही हूं मैं अभी. Okay, this much you will do. And then inside you will color with the light green. Is that clear? So that is how you are going to do the Christmas tree this time. Okay,
ऐसे ही पूरा आपको करना है, बाहर का डार्क ग्रीन एंड इनसाइड यू विल डू लाइट ग्रीन, एंड दिस स्टेम ऑफ द क्रिसमस ट्री यू कैन कलर इट brown. Okay, and on top you will write Christmas tree, CHRISTMAS, Christmas tree, TREE, tree. Okay, so this is what you need to do for your worksheet. Now we are going to do maths. Come to page number 47. Page number 47. Coins and currency notes. तो ये एक इंट्रोडक्शन है. वी यूज डिफरेंट कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स इन आवर डेली लाइव्स. हम कुछ भी खरीदने जाते हैं तो हमको पैसे देने पड़ते हैं. अब कभी कभी हम वो पैसे नोट्स में देते हैं और कभी कभी हम कॉइन्स में देते हैं. ओके, सो आई एम गोइंग टू इंट्रोड्यूस यू ऑल टू द डिफरेंट कॉइन्स एंड नोट्स दैट वी यूज. अभी यहाँ पे 1 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन, 5 रुपी कॉइन एंड 10 रुपी कॉइन दिखाया गया है. 1 रुपी नोट, 2 रुपीज नोट, 5 रुपीज नोट, 10 रुपीज नोट एंड 20 रुपीज नोट. ओके, तो यहाँ पे सब स्मॉल करेंसी अभी दिखाया गया है. सो वी विल फर्स्ट डू द स्मॉल करेंसी. नाउ हियर आई हैव अ 1 रुपी कॉइन. सो दिस इज 1 रुपी कॉइन. देन दिस इज 2 रुपी कॉइन. दिस इज 5 रुपी कॉइन. आप सबने शायद देखा ही होएगा. अगर नहीं देखा है तो प्लीज टेल योर पेरेंट्स टू शो यू. एंड दिस इज द 10 रुपी कॉइन. सो 1, 2, 5 एंड 10 रुपी कॉइन. ओके, पहले 1 रुपी, 2 रुपी और 5 रुपीज के नोट्स बहुत आते थे. अभी बहुत कम आते हैं. सो आई डोंट हैव एनीथिंग राइट नाउ टू शो for 1 rupee, 2 rupee and 5 rupee, but I have a 10 rupee note. So पहले ये डिजाइन में आता था 10 rupee note, और अभी का जो नया डिजाइन है वो ऐसे है. आप सब ने ये भी देखा होगा. So this is the old 10 rupee note and the new 10 rupee note. ये दोनों चलते हैं, अभी बंद नहीं हुआ है. ओल्ड वाला भी, ये भी चलता है और ये भी नया वाला भी चल रहा है. एंड we have two, just like that we have 20 rupee notes. This is the new 20 rupee note and this is the old 20 rupee note. ये भी दोनों अभी भी चल रहे हैं. ओके, बट अभी नए नोट्स ये वाले हैं. So this is the old 20 rupee note and the new 20 rupee note. Okay, so these are the different notes. Now I can also show you a 50 rupee note, a 100 rupee note. ये सब नए वाले दिखा रही हूँ. And I will show you a 500 rupee note. Okay, so I'm just going to keep this on the side. This is a 50 rupee note. This is a 100 rupee note. We have all different colors now. And this is a 500 rupee note. Okay, और सब नोट्स पे क्या है कॉमन? किसका फोटो है यहाँ पे? ये सब में महात्मा गांधी. किसका फोटो है? महात्मा गांधी. सो सब नोट्स पे, हमारी इंडियन सब नोट्स पे महात्मा गांधी. और ये देखिए यहाँ पे ये जो सिंबल है, ये रुपी का सिंबल है. ये क्या है? रुपी का सिंबल है. साइन बोलते हैं या सिंबल बोलते हैं. तो दिस इज रुपी का सिंबल. ओके, और हमारे नोट्स में 500 इंग्लिश में भी लिखा रहता है और 500 हिंदी में भी लिखा रहता है. ओके, सो वी हैव written out here also rupee sign is there and here also rupee sign is there. और हमारे नोट्स कहाँ बनते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. कहाँ बनते हैं? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. ओके, so this is how our notes look like. Also we have a 2000 rupee note. So this is a 2000 rupee note. Okay, तो हमने क्या क्या देखा? 1 rupee coin, 2 rupees coin, 5 rupee coin and 10 rupee coin.
बराबर। उसके बाद हमने देखा 10 रुपी नोट न्यू, 10 रुपी नोट ओल्ड। देन वी सॉ 20 rupees note new, 20 rupees note old. Then 50 rupees, 100 rupees, 500 rupees and 2000। अभी इसमें एक नोट मिसिंग है, कौन सा हमने नहीं देखा। अभी हमारे पास 200 रुपी नोट भी है। सो दिस इज द 200 रुपी नोट। ओके, सो 50, 100, then 200, 500 and 2000. Okay, and if you put this, so these are all the different colored currency that we have now. Okay, so it's brown, green, sky blue, purple, orange, gray and pink. Okay, so these are all the currency notes. अभी आपको क्या करना है, आप अपने पास अगर कॉइन्स है, ओके, आपको जरूरी नहीं है सब कॉइन्स होंगे। ओके, व्हाट यू ऑल विल डू इज इन अ वीडियो यू ऑल विल शो मी दिस कॉइन्स। दिस इज अ 1 रुपी कॉइन। आप वीडियो में बोलेंगे दिस इज अ 1 रुपी कॉइन, दिस इज अ 2 रुपी कॉइन, दिस इज अ 5 रुपी कॉइन, दिस इज अ 10 रुपी कॉइन। ऐसे आप वीडियो निकालेंगे। उसके बाद आपके पास जो भी नोट्स घर पे है, किधर से भी लेने की जरूरत नहीं है, जो भी नोट्स आपके घर पे है वो आप दिखाएंगे। दिस इज अ 10 रुपी नोट, दिस इज अ 20 रुपी नोट, दिस इज अ 50 रुपी नोट, दिस इज अ 100 रुपी नोट, दिस इज अ 200 रुपीज नोट, एंड दिस इज अ 500 रुपीज नोट, एंड दिस इज अ 2000 रुपीज नोट। ओके, सो जरूरी नहीं है आपके पास सब नोट्स घर में होंगे, लेकिन कॉइन्स मेरे को मालूम है आप सबके पास होएगा। तो आप कॉइन्स और नोट्स दोनों का आप वीडियो निकालेंगे और बोलेंगे कि कौन सा कॉइन कौन सा है और कौन सी नोट कितना अमाउंट का है। ओके, दैट्स ऑल यू नीड टू डू फॉर मैथ्स। मैथ्स में बहुत लाइट है, खाली इतना ही करना है। ओके, नाउ वी डू EVS। Come to page number 58. Page number 58. Chapter's name is Gardening of Flowering Plants and Ornamental Plants. मतलब जो गार्डन में प्लांट्स हम देखते हैं, फ्लावर्स देखते हैं, उसके बारे में ये चैप्टर है। सो देर आर डिफरेंट फ्लावर्स दैट आर अवेलेबल। थोड़े जो फ्लावर्स जो हम रेगुलरली देखते हैं उनको मैं इधर दिखा रही हूँ आपको प्रेजेंटेशन में। सो you know which flower is this? It's called rose. कौन सा फ्लावर है ये? रोज फ्लावर। तो ये हम बहुत बार देखे होंगे आप भी, और इसका नाम आप हिंदी में जानते होंगे गुलाब, बट इन इंग्लिश इट इज कॉल्ड रोज। ये अलग अलग कलर में आता है, रेड, येलो, वाइट, पिंक, बहुत कलर्स में आता है ये फ्लावर, एंड इट इज कॉल्ड रोज फ्लावर, रोज। देन वी हैव लोटस। आप सबने पढ़ा है लोटस के बारे में। लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया। लोटस इज द नेशनल फ्लावर ऑफ इंडिया, और ज्यादातर हमको लेक्स में ही लोटस ग्रो होता है, पॉन्ड्स और लेक्स में। आप अभी भी देख रहे हैं यहाँ पे सब पानी है आजू बाजू में, और वो फ्लावर एकदम फैलता है पानी में ही। इट्स कॉल्ड लोटस। व्हाट इज इट कॉल्ड? Lotus. These are called tulips. What are they called? Tulips. This is a tulip flower. ये बहुत बार बुके में सब यूज करते हैं, और ट्यूलिप फ्लावर्स भी अलग अलग कलर के आते हैं। जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पे येलो, पिंक, पर्पल, ऑरेंज, ये these are all the different types of tulip flowers. What are they called? Tulip flowers. देन वी हैव सनफ्लावर। सनफ्लावर एक फ्लावर ऐसा है जो सूरज उगता है तो पूरा इसका पेटल खुलता है, लेकिन जब सनसेट होता है, जब इवनिंग टाइम होता है, तो ऐसे फ्लावर बंद हो जाता है, ये पेटल्स भी ऐसे अंदर चले जाते हैं। सो दैट इज
अ सनफ्लावर, ये फ्लावर ऐसा है जो सन के सामने पूरा ग्रो होता है. इट ब्लूम्स, it opens up, the petals will open up in front of sun, and when the sun sets the petals will go down and the flower will look down. So this is called a sunflower. What is it called? Sunflower. Then these flowers are called lily. What are these? Lily. ज्यादातर हमारे इंडिया में और स्पेशली बॉम्बे में वी सी वाइट कलर का लिलीज, बट वी हैव डिफरेंट कलर ऑफ लिलीज ऑल्सो इन मेनी पार्ट्स ऑफ इंडिया, बट बॉम्बे में ज्यादातर हम वाइट कलर का ही देखते हैं. लिलीज कैन बी इन पिंक, येलो, ऑरेंज एंड वाइट. देन वी हैव मैरीगोल्ड फ्लावर्स. We have marigold flowers. This can be in orange color and yellow color. ज्यादातर ये पूजा, जब भगवान की पूजा करते हैं तब यूज करते हैं, या दशहरा पे या दिवाली पे इसके माला बना के गाड़ी पे भी लगाते हैं, घर के बाहर लगाते हैं, शॉप के बाहर लगाते हैं. तो ये मैरीगोल्ड फ्लावर बहुत जगह पे यूज होता है और इसको हिंदी में बोलते हैं गेंदा फूल. So this is the marigold flower. Then we have orchids. What are they called? Orchid. ये भी एक बहुत खूबसूरत फ्लावर है. ज्यादातर ये पर्पल कलर का होता है और अभी अभी हम किधर किधर हमको देखना मिलता है ब्लू कलर का ऑर्किड भी. ओके, सो दीज आर कॉल्ड ऑर्किड्स. ये शादी के डेकोरेशन में सब जगह बहुत काम आता है एंड इट लुक्स वेरी वेरी ब्यूटिफुल. ओके, सो वी लर्नड अबाउट रोज, लोटस, ट्यूलिप, sunflower, lily, marigold and orchid. Okay, now what you have to do is you will talk in your video about any two flowers. कोई भी दो फ्लावर लेना, आप ये 7 फ्लावर्स में से कोई भी 2 फ्लावर लेना और वीडियो में आप कोई भी 2 फ्लावर के बारे में बात कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने चूज किया रोज, सो अगर आपके हाथ में रोज है तो भी चलेगा, अगर नहीं है तो आप बोलेंगे आई लाइक रोजेस, और आई हैव सीन अ रेड कलर रोज, और रोज एज अ फ्लावर हैज थॉर्न्स ऑन इट. उसके स्टॉक के ऊपर थॉर्न्स होते हैं, कांटे होते हैं. सो एनीथिंग, एनी 2 sentences on that flower you need to talk. Okay, if you talk about marigold, you can say my parents or my grandparents use marigold for puja. Anything. I know I have seen marigold of yellow and orange color. Any 2 lines you need to talk about these flowers. That is one part of the homework. And the other part in the book, it's written prepare a greeting card with the help of dry petals. हम ये नहीं करेंगे, हम यहाँ पे कोई भी एक फ्लावर ड्रॉ करेंगे. आइडियली लोटस आप ड्रॉ कर सकते हो यहाँ पे. So you can just draw a lotus like this. Okay, so you can draw with the leaves and lotus flower. ड्रॉ करके आप इसको कलर करेंगे. लोटस हमने देखा था यहाँ पे, इट वॉज पिंक इन कलर एंड द ग्रीन लीव्स, एंड आजू बाजू में सब पानी है. सो यू कैन कलर इट ब्लू. डोंट फॉरगेट टू राइट योर नेम, टेक अ पिक्चर एंड सेंड. ओके, दिस इज ऑल फॉर टुडे. हैव अ गुड डे. बाय बाय.